Assalamu alaikum. I am Asif Kamal, your English teacher. I hope all of you guys are doing well at home. Today we are going to start another chapter. All is not lost. कि सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, सब कुछ ज़ाय नहीं हुआ. First of all, I would like to share theme of this chapter. In this chapter, two themes are running parallel. One is devotion to profession, and the other one is hope and determination. Basically, this chapter is about a nurse. Her name is Rahila. She is true to her profession and she is going to save a life of a young lady named Hira. In this chapter, we are told about the determination, the hope and courage of a nurse who fight a lost battle and saved her patient's life. Actually, in our country, in Pakistan, the profession of nursing is underrated. We don't value this profession as we value to other professions like doctor, a lawyer, and many other professions. Nursing in our country is considered one of the minor profession. But in fact, nursing is one of the highly respectable profession at international scope, at international level. People valued this profession and respect a lot. I have made a slide in this regard, all is not lost. In subtitle, I have mentioned profession and devotion. First, profession and then devotion. Because in this chapter, Rahila is true to her profession and she is determined to save the life of the patients, and she is true to her profession as well. Then look at this page. Nursing. Nursing is a profession within the healthcare sector, focused on the care of individuals, families, and communities, so they may attain, maintain, or recover optimal health and quality of life. तो ये है प्रोफेशन नर्सिंग का कि कहाँ पर होती हैं ये हेल्थ केयर सेक्टर में. क्या काम होता है इनका कि लोगों की, कम्युनिटीज़ की, फैमिलीज़ की, उनके लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी सेहत को मेंटेन करने के लिए लोग काम करती हैं. ठीक है. Nurses may be differentiated from other healthcare providers by their approach to the patient care, training and scope of practice. तो नर्सिंग डिफरेंट हो सकती, मीन कि उनका आगे जो सेक्टर है, आगे जो शोबा है एक ही, वो डिफरेंट हो सकता है. ठीक है. मीन कि एक नर्स के ज़िम्मे मुख्तलिफ काम हो सकती हैं करने के लिए. In fact, at international level, nursing is one of a sacred profession. People Before starting
the reading of the chapter, I would like to tell you about the medical terminologies that are used in the chapter as ICU, then neurology ward and neurological disorder. Okay, I have a slide for you people in this regard. First of all, in ICU, intensive care units, मतलब कि इंतहाई निगहदाश्त के units are specialist hospital wards that provide treatment and monitoring for people who are very ill. तो ये हॉस्पिटल के अंदर स्पेशल वार्ड्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पर ऐसे लोगों को रखा जाता है जिन्हें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, मीन कि जिन्हें हर वक्त मॉनिटर किया जाता है, हर वक्त उनको चेक किया जाता है, ठीक है, मीन कि ये लोग बड़े क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं जो यहाँ पर होते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर ICU यूनिट में रखा जाता है। तो आप लोगों ने भी हॉस्पिटल में अक्सर देखा होगा कि एक रूम के बाहर या ऐसे मीन के वार्ड में लिखा होता है ICU लिखा होता है, ठीक है। तो उसका मतलब यही होता है कि यहाँ पर ऐसे लोगों को रखा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा केयर के मोहताज है, मीन कि जिनकी बहुत ज़्यादा केयर की जाती है, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं। ओके, देन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या न्यूरोलॉजिकल वार्ड, जहाँ पर ऐसे लोगों को मीन कि न्यूरोलॉजिकल वार्ड वो वार्ड होता है जो लोग अपनी मीन के आसाबी कुव्वत को खो देते हैं या उन्हें कोई आसाबी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। A neurological disorder is any disorder of the nervous system. तो ये हमारी नर्वस सिस्टम के अंदर कोई भी जो डिसऑर्डर होता है, ख़राबी होती है, उसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। स्ट्रक्चरल, बायोकेमिकल और इलेक्ट्रिकल abnormalities in the brain, spinal cord and other nerves can result in a range of symptoms. अब यहाँ पर देखें, न्यूरॉन्स, जैसे कि आपको पता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं जो कि मैसेज हमारे ब्रेन तक लेके जाते हैं, मीन कि हमारे जहन तक लेके जाते हैं। तो जब इंसान को कोई चोट वगैरह लग जाती है, बहुत ज़्यादा लाइक स्पाइनल कॉर्ड में लग गई, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है वो ख़राब हो जाता है, मीन कि डिसऑर्डर हो जाता है इसमें। तो फिर क्या होता है कि हमारे ब्रेन तक जो हमारा एक सिस्टम, जो एक लिंक काम कर रहा होता है, वो छोड़ जाता है। तो फिर इंसान क्या होता है, मोस्टली पैरालाइज्ड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है, बहुत सारी कम्प्लेक्सिटीज़, मीन कि वो इंसान नॉर्मल नहीं रहता, वो नॉर्मल हो जाता है। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। These are few important words with their meanings from the chapter. Okay, let's start reading. It was the beginning of my profession as a nurse. एक नर्स की हैसियत से ये मेरे पेशे का आगाज़ था। I worked in the intensive care unit ICU of neurology ward. मैं एहसाबी इलाज के एक इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में काम करती थी। कौन बता रही है हमें ये? जो इस चैप्टर में नर्स है, रहीला हमें बता रही हैं कि वो क्या, कि ये उनके पेशे का आगाज़ था, शुरू में इनकी शुरुआत थी पेशे की। और फिर वो काम भी कहाँ करती हैं? ICU में, इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया,
स्लाइड्स में भी कि यहाँ पर ऐसे लोगों को रखा जाता है जो कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं। एज अ यंग प्रोफेशनल आई विश टू सेव द वर्ल्ड। एक नौजवान पेशावर की हैसियत से मैं दुनिया को बचाने की ख्वाहिश करती थी। I was excited to see patients making quick recoveries from devastating accidents. Yet I was pained to nurse those who were struck with acute neurological disorder. मैं तबाह बर्बाद कर देने वाले हादसात में, इनके वो जो इंतहाई शदीद किस्म के हादसात होते हैं, उनसे मरीज़ों को जल्द सेहतयाब होते देखकर पुरजोश हो जाती थी, इनके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। लेकिन उन मरीज़ों की तीमारदारी करते हुए, देखभाल करते हुए मुझे दुख होता था जिनको शदीद किस्म की तकलीफ़ देने वाले असाबी चोटें आती थीं। इनके जो लोग बहुत ज़्यादा असाबी तकलीफ़ में मुब्तला होते थे, उन लोगों की देखभाल करके इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। One day, standing at the bedside of a young bus accident victim, I wondered if she could make the same recovery as others. एक दिन एक बस के हादसे का शिकार होने वाली नौजवान लड़की के पास खड़े होते हुए मैं सोचने लगी कि वो दूसरे मरीज़ों की तरह सेहतयाब हो सकेगी। Hira had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road. हीरा को सर और रीढ़ की हड्डी में शदीद ज़ख़म आए थे जब एक मसरूफ़ सड़क को अबूर कर रही थी। I took her lifeless arms in my hands and tried to do several exercises on her, but in vain. मैंने उसके बेजान बाजुओं को अपने हाथों में लिया और उस पर बहुत सी वर्जिशें आजमाई, लेकिन सब कुछ बेकार, सब कुछ बेसूद। Also, I made her younger sister come and talk to her, thinking that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons. और मैंने उसकी छोटी बहन को भी बुलाया कि वो आए और उससे बात करे, ये सोचते हुए कि हो सकता है एक करीबी अजीज़ की आवाज़ सुनकर तकरीबन मुर्दा असबी खोलियों में हरकत पैदा हो सके। She could see but not talk. वो देख सकती थी लेकिन बात नहीं कर सकती थी। Her eyes showed a certain helplessness. उसकी आंखें एक मखसूस बेबसी का शिकार थीं। उसकी आंखों में एक मखसूस बेबसी दिखाई दे रही थी, बेचारगी दिखाई दे रही थी। I could read her mind through her eyes. मैं उसकी आंखों में से उसके दिली ख्यालात को पढ़ सकती थी, मतलब कि मैं उसका जहन पढ़ सकती थी। Perhaps she wanted to say, please help me. शायद वो ये कहना चाहती थी, मेहरबानी करके मेरी मदद करो। A fellow nurse came near me and asked Rahila, what are you doing? Fighting a lost battle. एक साथी नर्स मेरे करीब आई और पूछा, रहीला तुम क्या कर रही हो? तुम एक हारी हुई जंग लड़ रही हो जिसमें कोई उम्मीद ना हो। यहाँ पर देखें कि उसकी डिवोशन, एक नर्स का अपने प्रोफेशन से ट्रू होना, मीन कि अपने प्रोफेशन के साथ उसकी लॉयल्टी यहाँ पर जाहिर हो रही है। ठीक है। I was shocked at first to hear a colleague making a hopeless comment. पहले तो मुझे अपनी रफ़ीका, मीन कि अपनी साथी नर्स का इस तरह का नाउमीदी की बात करने पर सदमा पहुँचा। Then I replied,
आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस हर सिस्टर्स वॉइस। फिर मैंने जवाब दिया, मैं इसकी बहन की आवाज़ के ज़रिए इसके दिमाग को फाल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ऑल्सो आई एम डूइंग माई बेस्ट टू इंश्योर दैट हर आर्म्स एंड लेग्स गेट प्रॉपर एक्सरसाइज। और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इस बात को यकीनी बनाऊँ कि इसके बाजू और टांगों की मुनासिब वर्जिश हो। दिस माइट हेल्प हर वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन। शायद इस तरह से ये एक आम आदमी की तरह चलने में इसकी मदद हो सके। मीनवाइल अ सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी वॉकड इन। और इसी दौरान इसी असना एक सीनियर डॉक्टर जो कि ड्यूटी पर था वो चलता हुआ अंदर आया। ही गिव मी एन आयरॉनिक स्माइल एंड सैड। आयरॉनिक स्माइल एक तंजिया मुस्कुराहट को कहते हैं। तो उसने मुझे एक तंजिया मुस्कुराहट दी और कहा, इफ़ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी आवर्स ऑन वन पेशेंट वी विल हैव टू रिक्रूट मोर नर्सेज टू अटेंड द अदर पेशेंट्स। अगर तुम अपनी ड्यूटी का ज़्यादातर वक्त एक ही मरीज़ा पर सर्व कर दोगी तो फिर हमें दूसरे मरीज़ों की देखभाल करने के लिए ज़्यादा नर्सों को भर्ती करना पड़ेगा। प्लीज़ गो एंड सी अदर पेशेंट्स। मेहरबानी करके जाओ और दूसरे मरीज़ों की देखभाल करो। वी डोंट हैव मच होप फॉर हर। इसकी सेहतयाबी की ज़्यादा उम्मीद नहीं है। आई डोंट थिंक दैट शी कैन एवर वॉक अगेन। मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा कभी चल सकेगी।